A. So, tradition number 4. Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or A as a whole. Autonomy is a $10 word, but in relation to us, it means very simply that every AA group can manage its own affairs exactly as it pleases, except when AA as a whole is threatened. Comes now the same question raised in Tradition 1. Isn't such liberty foolishly dangerous? Over the years, every conceivable deviation from our 12 steps and traditions has been tried. That was sure to be, since we are so largely a band of ego driven individualists, children of chaos. We have definitely played with every brand of fire only to emerge unharmed and we think wiser. These very deviations created a vast process of trial and error with which, under the grace of God, has brought us to where we stand today. When A's traditions were first published in 1946, we had become sure that an A group could stand almost any amount of battering. We saw that the group, exactly like the individual, must eventually conform to whatever tested principles would guarantee survival. We had discovered that there was perfect safety in the process of trial and error. So confident of this had we become that the original statement of a tradition carried this significant sentence. Any two or three alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an AA group, provided that as a group they have no other affiliation. This meant, of course, that we had been given the courage to declare each AA group an individual entity, strictly reliant on its own conscience as a guide to action. In characterizing this enormous expanse of freedom, we found it necessary to post only two storm signals. A group ought not to do anything which would greatly injure A as a whole, nor ought it affiliate itself with anything or anybody else. There would be real danger should we commence to call some group wait, others dry, still others Republican or Communist, and yet others Catholic or Protestants. The AA group would have to stick to its course or be hopelessly lost. Sobriety had to be its sole objective. In all other respects, there was perfect freedom of will and action. Every group had the right to be wrong. When A was okay. तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। लकी। अभी हम ट्रेडिशन 4 पे आए हैं, जहाँ पे समूह की ऑटोनॉमी यानी कि स्वयं शासन, एग्जैक्टली इसको इंडिपेंडेंट तो नहीं, स्वतंत्रता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप की ऑटोनॉमी के बारे में बिल शुरू करता है कि ऑटोनॉमी एक बड़ा ही और भारी भरकम शब्द है, लेकिन हमारे संदर्भ में इसका अर्थ बहुत सरल है। हर ए समूह अपने कार्यों और मामलों को अपनी इच्छा और समझ के अनुसार स्वतंत्र रूप से चला सकता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जब पूरी ए संस्था पर कोई खतरा ना आ जाए।
अब ये प्रश्न फिर से उठता है जो परंपरा 1 में उठाया गया था, क्या इतनी स्वतंत्रता खतरनाक और मूर्खतापूर्ण नहीं है? आगे लिखता है कि वर्षों के दौरान हमारे बाहरा कदमों और परंपराओं से संभव हर तरह का विचलन आजमाया जा चुका है। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि हम मूलतः अहंकार से संचालित व्यक्तिवादियों का एक समूह रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ केओस, अराजकता की संतान होने के नाते हमने हर तरह की आग से निडर होकर खेला और फिर भी हम न केवल सुरक्षित निकल आए बल्कि हमें लगता है और अधिक समझदार बनकर उभरे। यही सारे विचलन, परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर की एक विशाल प्रक्रिया का कारण बने, जिसने ईश्वर की कृपा से हमें उस स्थान तक पहुंचाया जहां आज हम खड़े हैं। जब 1946 में एक ही परंपराएं पहली बार प्रकाशित की गई थी, तब तक हमें यह पूरा विश्वास हो चुका था कि कोई भी एक का समूह लगभग किसी भी स्तर का भार झेल सकता है, यानी कि आलोचना, संघर्ष या कठिनाइयों को सह सकता है। हमने देखा कि समूह को भी बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह उन परखे हुए सिद्धांतों के अनुरूप ढलना ही पड़ता है जो उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। हमने ये खोज लिया था कि ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया में पूर्ण सुरक्षा निहित है। इस बात को लेकर हमारा भरोसा इतना गहरा हो गया था कि ए परंपरा के मूल वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण वाक्य शामिल किया गया, और वो ये था कि जो भी 2 या 3 शराबी सोब्राइटी के उद्देश्य से एकत्र होते हैं वे स्वयं को एक का समूह कह सकते हैं, बशर्त कि एक समूह के रूप में उनका किसी अन्य संगठन से कोई सीधा संबंध ना हो। इसका अर्थ यह था कि हमें यह साहस मिल चुका था कि हम एक प्रत्येक ये समूह को एक स्वतंत्र इकाई, एक इंडिपेंडेंट यूनिट घोषित कर सकें, जो अपने कार्यों के मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह अपनी सामूहिक सतसत विवेक बुद्धि यानी कि ग्रुप कॉन्शियस पर निर्भर हो। इस अपार स्वतंत्रता के क्षेत्र को निर्धारित करते समय हमें केवल 2 चेतावनी संकेत लगाने का आवश्यकता लगे। एक, कोई भी समूह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे पूरी ए संस्था को गंभीर क्षति पहुंचे। 2, कोई भी समूह किसी भी अन्य व्यक्ति या संगठन से स्वयं को ना जुड़े, एफिलिएट ना करे। वास्तविक खतरा तब उत्पन्न हो सकता था यदि हम कुछ समूहों को गीला, कुछ को सूखा ड्राई, कुछ को रिपब्लिकन या कम्युनिस्ट बिल, यहाँ पे समूहों के स्वरूप के हमारे को बात बता रहा है कि कहना शुरू कर देते। ए समूह को अपना मार्ग पर टिके रहना था, अन्यथा वो पूरी तरह भटक सकता था। एकमात्र उद्देश्य सोब्राइटी होना चाहिए था, अन्य सभी मामलों में इच्छा और कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता थी, और तो और हर समूह को गलत होने का अधिकार था। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी। लेट मी शेयर माय। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण। हाय एवरीबॉडी। हाय भूषण। भगवान की बड़ी कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हो दोस्तों, और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हम लोग ट्रेडिशन 4 पे है, तो सबसे पहले मैं ट्रेडिशन 4 का जो लॉन्ग फॉर्म है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप जानते हो कि पहले जो लिखे गए थे वो 12 पॉइंट्स टू सिक्योर आवर फ्यूचर करके BW ने एक आर्टिकल लिखा था। वहां से फिर 1946 में ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस है ये बना, और फिर 1949 में बिफोर द क्लीवलैंड कन्वेंशन जो अभी जो हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है जो हम लोग पढ़ते हैं वो बना। तो जो लॉन्ग फॉर्म है वो पढ़ना इसके लिए जरूरी है क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म में हमको एक्चुअली उनको क्या कहना क्या था वो टाइम पे, वो उनका कहना बात क्या छेड़नी थी, ये हमें दिखाई देता है।
तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन अफेयर्स यानी कि खुद के संचालन के बारे में ईच AA ग्रुप शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू नो अदर अथॉरिटी देन इट्स ओन कॉन्शियस। यानी एक AA समूह ने दूसरे किसी भी अधिकार को सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपने ही समूह की सतसत विवेक बुद्धि पर चलना है। बट व्हेन इट्स प्लान्स कंसर्न द वेलफेयर ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स ऑल्सो, लेकिन जब भी आपका कोई भी प्लान बने, आपके समूह कोई भी विचार करे, प्लान करे, तो उसके वजह से अगर बाकी जो अगल बगल में समूह है उनको भी असर होने वाला हो, दोज ग्रुप्स ऑट टू बी कंसल्टेड। तो उनके साथ में बातचीत करके फिर ही ये निर्णय लिया जाए। एंड नो ग्रुप, रीजनल कमिटी और इंडिविजुअल should ever take any action that might greatly affect AA as a whole without conferring with the trustees of the General Service Board। इसी के साथ कोई भी एकाध समूह रीजनल कमिटी, यानी वो भले अंतर समूह हो, स्टेट कमिटी हो या एरिया कमिटी हो, और इंडिविजुअल या कोई भी एक वैयक्तिक सदस्य हो, इसने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से पूरे AA एज अ होल को धोखा पहुंचे। अगर ऐसा कोई करने की सोच रहा है और उसके मन में संदेह है कि इससे लोगों को तकलीफ होगी क्या, या AA को धोखा पहुंचेगा क्या, या ट्रेडिशन ब्रेक होगी क्या, तो उसने जो ट्रस्टीज है, अपने जनरल सर्विस बोर्ड है अपना, उनके साथ में ये एक्शन लेने के पहले उनके साथ चर्चा करके फिर ही ये एक्शन लेनी चाहिए। ऑन सच इश्यूज आवर कॉमन वेलफेयर इज पैरामाउंट। अब जब भी ऐसे जो धोखादायक विषय है, वो टाइम पे हमारे वैयक्तिक हित से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जो हमारे सभी का, पूरे फेलोशिप का हित डिपेंडेंट हो। तो जैसे बिल डब्ल्यू ने शुरुआत में ही कहा हुआ है कि ट्रेडिशंस 3 प्रकार के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रिश्ता एक सदस्य का उसके समूह के साथ, यानी मेरे समूह के साथ जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये ट्रेडिशंस मुझे गाइड करती है। दूसरा रिश्ता है समूह का AA एज अ होल के साथ। मेरा अगर रिवाइवर समूह है, थाना के एक कोने में मिलता है, उसका AA एज अ होल के साथ में जो रिश्ता है उसके बारे में। और तीसरा AA एज अ होल विद द वर्ल्ड, यानी हमारा AA का पूरा जो वो दुनिया है, उसका बाहरी दुनिया के साथ में संबंध। तो ये 3 प्रकार के संबंधों को हमारे ट्रेडिशन जो है वो गाइड करने का एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स करके काम करते हैं। तो समूह ये क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई 2 या 3 शराबी एक साथ में आ जाए तो वो अपने आप को AA का समूह कह सकते हैं। सो सपोज मेरा रिवाइवर समूह है जो होली क्रॉस कॉन्वेंट में मिलता है। तो अगर ये होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में मिलने के बजाय सेंट जॉन द बैप्टिस्ट स्कूल में मिलने लगेगा, तो भी ये रिवाइवर समूह ही रहेगा। सो जगह से ये निर्भर नहीं है। हमारा समूह मंगलवार को और गुरुवार को 7:30 से 9 मिलता है। अगर हमने मंगलवार और गुरुवार के बदले सोमवार और बुधवार को मिलना चालू करेगा, तो भी ये रिवाइवर समूह ही रहेगा। और 7:30 से 9 के बदले सुबह अगर 11 से 1:30 भी मिलेंगे, तो भी ये रिवाइवर समूह ही रहेगा। अगर 1.5 घंटे के बदले आधे घंटे की मीटिंग करेंगे, तो भी रिवाइवर समूह ही रहेगा। तो मतलब कोई भी AA का समूह ना जगह से आइडेंटिफाई होता है, ना समय से आइडेंटिफाई होता है, ना कि उसके मिलने उसके सदस्यों से निर्भर होता है। जब भी मैं रिवाइवर ग्रुप में आया था, वो टाइम पे वहां के जो सदस्य थे
उनमें से आज एक आध ही बचा हुआ है, वो भी शायद नहीं आता है। और आज मैं हूं, उसके बाद में 20 साल के बाद में शायद आज जो आ रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं रहेगा और कोई भलते ही मेंबर रहेंगे। सो इसका मतलब वो मेंबर पे भी निर्भर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक निशानी है जिससे समूह बनता है। तो समूह बनने के लिए इनमें से कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है। तो कोई भी 2 या 3 सदस्य इकट्ठा आकर अपने आप को एक समूह बोल सकते हैं। सिर्फ उसका जो 2 कंडीशंस उसमें जो दिया है कि वो कोई भी उनको दूसरे किसी का अधिकार सुनने की उसका किसी का कोई अंतर समूह आके हमें बता नहीं सकता कि अरे रिवाइवर ग्रुप, आपकी ये गुरुवार की मीटिंग है, ये बंद कर डालो और गुरुवार को दूसरी जगह पे चलेगी। ये कोई बता नहीं सकता। या 7:30 से 9 के बदले आप ऐसा करो 8:30 से मीटिंग चालू करो, कोई नहीं बता सकता। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो समूह की सदसद विवेक बुद्धि। तो समूह की सदसद विवेक बुद्धि कहाँ व्यक्त होती है? तो अपने बिजनेस मीटिंग में। हर समूह की जब भी एक व्यवहार की मीटिंग होती है, एक बिजनेस मीटिंग होती है। अब हमारे समूह की होती है हर महीने के दूसरे मंगलवार को। किसी के वो जो भी आप डिसाइड करो तभी ये हो सकती है। तभी जो लोगों ने ये समूह को अपना होम ग्रुप बनाया है, ये सभी वो सदस्य जो है उस दिन मिलते हैं मीटिंग के। हमारा जहाँ रिवाइवर में 7:30 से 9 की मीटिंग होती है। तो जिस दिन बिजनेस मीटिंग होती है उस दिन हम लोग 8:45 बजे मीटिंग खत्म करते हैं। फिर 8:45 से आगे 9:30 या जो भी समय लगेगा, जो भी एजेंडा रहेगा, जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने के रहेंगे, वो पूरा होने तक बिजनेस मीटिंग चलती है। तो ये बिजनेस मीटिंग में नए पुराने सभी सदस्य जो भी सामने इशू है, लेट अस से हमारे मीटिंग का समय, लेट अस से एक इशू है कि क्या हम लोगों ने शुक्रवार की ऑनलाइन मीटिंग शुरू करनी चाहिए। तो इतने साल कोरोना जाने के बाद में इतने साल ऑनलाइन मीटिंग बंद थी। फिर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रिवाइवर की ऑनलाइन मीटिंग चालू करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिटरेचर का नॉलेज मिला, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो ये ऐसी एक मीटिंग होनी चाहिए। ये बातें तो बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो समूह ने जब तक उसको हाँ नहीं किया तब तक ये हो नहीं रहा था। लेकिन जब ही हमारा ये साल 2025 में 8 मार्च को हमारे समूह की 41 साल पूरे हो गए और उसकी जो बिजनेस मीटिंग हुई, वो बिजनेस मीटिंग में ये विषय चर्चा में आया और सब लोगों ने एक मत से बात किया कि हमारी ऑनलाइन मीटिंग दोबारा चालू होनी चाहिए और वो भी शुक्रवार को होनी चाहिए और वो भी मीटिंग का समय खत्म होने के बाद, यानी 9 बजे के बाद होनी चाहिए। ये 3 क्लियर निर्णय दिए। ये निर्णय क्यों थे? तो ये ऑनलाइन मीटिंग चालू होने की वजह से एज फार एज पॉसिबल दूसरी ऑनलाइन मीटिंग्स को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि 9 बजे के बाद की मीटिंग्स काफी कम थी। दूसरी बात, इसके वजह से जो ठाणे में चल रहे बाकी जो ग्रुप्स है जिनकी फिजिकल मीटिंग्स है, उनको तकलीफ ना हो। कि ऐसा नहीं हो कि आज मेरे को 9 बजे का रिवाइवर का रात का मीटिंग अटेंड करना है तो मैं 7 बजे 7:30 बजे का जुपिटर को मीटिंग को नहीं जाऊंगा। तो सब कुछ विचार किए गए कि 7 से 8:30 अगर जुपिटर की मीटिंग होती है फिर भी आधा घंटा बचता है घर में जाके ये मीटिंग चालू करने के लिए। तो मतलब क्या कि समूह के सदस्यों ने किन चीजों का विचार किया? सबसे पहले कि ये मीटिंग सबके भले के लिए है क्या? हाँ, बिल्कुल सबके भले के लिए है। ठीक है, तो इस मीटिंग को चालू करने की वजह किस किस को तकलीफ हो सकती है? दूसरी कोई शुक्रवार को रात को इसी समय क्लैश होने वाली मीटिंग है क्या? तो हमने देखा कि हमारे एरिया में, यानी ठाणे अंतर समूह से या नियर बाय एरियाज में मराठी मीटिंग्स या हिंदी मीटिंग्स में कुछ खास हमको दिखाई नहीं दिया। और फिर तीसरा सवाल आया कि इसके वजह से कोई फिजिकल मीटिंग को तकलीफ होगी क्या? तो नहीं, इसके लिए 9 बजे का समय डिसाइड किया गया। तो ये ग्रुप का कॉन्शियंस है, उसने निर्णय मीटिंग कभी भी चालू करने का निर्णय वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये असल में लिया कि बाकी समूहों को तकलीफ नहीं, हमारे ग्रुप का भले कॉन्शियंस हो
लेकिन ये कॉन्शियंस में दूसरे ग्रुप को अगर इनकन्वीनियंस होने वाला हो या तकलीफ होने वाला हो तो ऐसा निर्णय लेने से हम लोगों ने अपने आप को रोकना चाहिए। तो ये जो मुद्दा यहाँ पर देखा है कि when its plans concern the welfare of neighboring groups also, कि अगर बाकी समूहों के सदस्यों को भी ज्वाइन होना है तो उनकी मीटिंग में बाधा नहीं होनी चाहिए, उनकी मीटिंग वैसी चलनी चाहिए, उसके बाद में वो सदस्य जुड़ना चाहे तो जुड़ सकने चाहिए। और सो यहां तक हम लोग सिर्फ यहीं पर पहुंचे हुए कि किसी भी प्रकार का ब्रांड हमारा नहीं होना चाहिए कि ये कैथलिक लोगों का है या प्रोटेस्टेंट लोगों का है। यानी ये वहां पर जैसे आप जानते हो कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट से क्रिश्चियन लोगों में दो विभाग है, वैसे जाति के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए या पैसे वाले और नहीं होने वाले ऐसे इश्यूज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सबके लिए खुला होना चाहिए और किसी और के साथ में जुड़ना नहीं चाहिए। यानी ये किसी डॉक्टर के क्लिनिक में चलने वाली मीटिंग है तो ये डॉक्टर की मीटिंग है नहीं, तो हम लोग किसी और के साथ में जुड़ते नहीं। हमारा नाम भी जो है, भले हमारा होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में मीटिंग चलता है लेकिन हमारा ग्रुप का नाम होली क्रॉस ग्रुप नहीं हो सकता। हमारे ग्रुप का नाम होली क्रॉस और कॉन्वेंट, ये 3 शब्द छोड़कर बाकी कोई भी नाम से लग सकता है ताकि वो संलग्नता नहीं लगे। हमारा जो दूसरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो या रिलीजन हो या इंस्टीट्यूट हो उनके साथ में हमारा कनेक्शन ये नहीं होना चाहिए। सो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एज अ होल को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, धोखा पहुंचा सकते हैं या दूसरे ग्रुप्स को धोखा पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं अश्विन भाई को बोलूंगा कि आगे के 3 पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद में फिर हम लोग इस बात को वापस दोहराते हैं। तो ओवर टू यू अश्विन भाई। जी, थैंक यू भूषण जी। तो पैराग्राफ second paragraph from 147. When A was still young, lots of eager groups were found. In a town we will call Middleton, a real crackjack had started. The townspeople were as hot as firecrackers about it, stargazing the elders' dream of innovations. They figured the town needed a great big alcoholic center, a kind of pilot plant A groups would duplicate everywhere. Beginning on the ground floor, there would be a club. In the second story, they would sober up drunks and hand them currency for their back debts. The third deck would house an educational project, quite non-controversial, of course. In imagination, the gleaming center was to go up several stories more, but 3 would do for a start. This would all take a lot of money, other people's money. Believe it or not, wealthy townsfolk would bought the idea. There were, though, a few conservative dissenters among the alcoholics. They wrote the foundation, A's headquarters in the New York. Foundation has been star marked and a note has been given at the end of this page. In 1954, the name of the Alcoholic Foundation Inc. was changed
to the General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. And the foundation office is now the General Service Office. They wrote the foundation, AA's headquarters in New York, wanting to know about this sort of streamlining. They understood that the elders just to nail things down good were about to apply to the foundation for a charter. These few were disturbed and skeptical. Of course, there was a promoter in the deal, a super promoter. By his eloquence, he allayed all fears despite advice from the foundation that it could issue no charter and that ventures which mix an AA group with medication and education had come to sticky ends elsewhere. To make things safer, the promoter organized 3 corporations and became president of them all. Freshly painted, the new center shone. The warmth of it all spread through the town. Soon things began to hum. To ensure foolproof continuous operation, 61 rules and regulations were adopted. But alas, this bright sense was not long in darkening. Confusion replaced serenity. It was found that some drunks yearned for education, but doubted if they were alcoholics. The personality defects of others could be cured, maybe with a loan. Some were club-minded, but it was just a question of taking care of the lonely heart. Sometimes the swarming applicants would go for all 3 floors. Some would start at the top and come through to the bottom, becoming club members. Others started in the club, pitched a binge, were hospitalized, then graduated to education on the 3rd floor. It was beehive of activity, all right, but unlike a beehive, it was confusion compounded. An AA group, as such, simply could not handle this sort of project. All too late, that was discovered. Then came the inevitable explosion. Something like that day, the boiler burst in Wormley's clapboard factory. A chill choke damp of fear and frustration fell over the group. Should I stop here or should I go for one more? Okay. When that lifted, a wonderful thing had happened. The head promoter wrote the foundation office. He said he wished he had paid some attention to AA experience. Then he did something else that was to become an AA classic. It all went on a little card about golf score size. The cover read, Middleton Group, #1, Rule #62. Once the card was unfolded, a single pungent sentence leaped to the eye. Don't take yourself too damn seriously. Thus it was that under Tradition 4, an AA group had exercised its right to be wrong. Moreover, it had
performed a great service for Alcoholics Anonymous because it had been humbly willing to apply the lessons it learned. It had picked itself up with a laugh and gone on to better things. Even the chief architect, standing in the ruins of his dream, could laugh at himself, and that is the very asthma of humility. Thank you. यस, ओके। तो यहाँ पे बिल बाकी परंपराओं की तरह और परंपरा जैसे अनुभव से बनी है हमारे, एक अनुभव की बात करता है बिल। यहाँ पे लिखता है कि जब ये अभी नई ही थी तब बहुत सारे समूह बन रहे थे और बड़े समूह उत्साह से बन रहे थे। एक शहर जिसे हम मिडिल टाउन कहेंगे, वहां एक बेहद सक्षम और जोशीला समूह शुरू हुआ। शहर के लोग इसे लेकर काफी उत्साहित थे और बड़े बड़े सपने देख रहे थे। बुजुर्ग सदस्यों ने नए नए नवचारों के सपने देखने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि शहर को एक बहुत बड़ा शराबीपन से मुक्ति दिलाने वाला केंद्र चाहिए, एक तरह का पायलट प्लांट जिसकी नकल एक ही समूह हर जगह कर सके। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लब होगा, दूसरी मंजिल पर हम शराबियों पे उनको सोबर करने के लिए, उनका डिटॉक्स करने के लिए काम करेंगे और उनके पुराने कर्जे चुकाने के लिए उन्हें पैसे दिए जाएंगे। और तीसरी मंजिल पर शराबियों की एक एजुकेशनल शैक्षणिक परियोजना होगी और वहां पे हम उनको कोई काम करना सिखाएंगे या कोई प्रोफेशन सिखाएंगे ताकि शराबी जब वापस जाए निकल करके तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब उस वक्त को देखते हुए जब हमारे ट्रेडिशंस नहीं थे तो ये बिल्कुल गैर विवादास्पद लग रही थी। कल्पना में यह चमकता हुआ केंद्र कई और मंजिलों तक ऊंचा उठने वाला था, यानी कि लोगों की और भी कल्पनाएं थी कि ऐसा भी करेंगे वैसा भी करेंगे। लेकिन आखिरी में वो समूह ने ये डिसाइड किया कि शुरुआत के लिए हम इसे 3 मंजिलों तक ही सीमित करते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम एक क्लब बनाएंगे, सेकेंड फ्लोर पे शराबियों को डिटॉक्स या उनको पैसे देने का काम, उनको ठीक करने का काम, और तीसरे फ्लोर पे उनको सशक्त करने का काम, एजुकेशन देने का काम या कुछ सिखाने का काम करेंगे। अब परियोजना तो बड़ी थी और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, और वो पैसा किसका था? दूसरों का पैसा। और भले आप माने ना माने, शहर के धनी लोगों ने इस विचार के साथ में सहमति बता दी। हालांकि शराबियों में उन जो समूह के सभासद थे उनमें से कुछ सदस्य सतर्क थे और असहमत भी थे इतनी बड़ी परियोजना के साथ। तो उस वक्त हमारा फाउंडेशन हुआ करता था, तो उन्होंने फाउंडेशन को लिखा, न्यूयॉर्क स्थित एक मुख्यालय को पत्र लिखा कि इस तरह के संगठित ढांचे के बारे में, यानी कि स्ट्रीमलाइंड ए ग्रुप जिसमें इतनी सारी एक्टिविटी हो, इसके बारे में आपका क्या विचार है। उन्हें यह भी पता चल गया था कि कुछ पुराने सदस्य सब कुछ पूरी तरह पक्का करने के लिए फाउंडेशन से एक चार्टर लेने को तैयारी में थे। चार्टर यानी कि हम उस बात को कह सकते हैं जो चीजें क्या चलेंगी, कैसे चलेंगी, क्या संबंध होगा, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन सकता है चार्टर। तो एक तरफ कुछ लोग फाउंडेशन से इस संपर्क में थे कि भाई हम इसको कैसे अच्छे से चला सकते हैं वो बताओ। दूसरी तरफ कुछ सदस्यों को ये गलत लग रहा था और वो भी फाउंडेशन के चक्कर में थे, वो वार्तालाप के चक्कर में। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण चीज थी और वो था एक प्रमोटर यानी कि समझ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति कि जो कि ए में आने के बाद, सोबर होने के बाद बड़े सपने देखने लग पड़ता है और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसकी इच्छा होती है करने की। और वो ये साधारण व्यक्ति प्रमोटर नहीं था बल्कि एक महाप्रचारक भी था। यानी कि देखा जाएगा तो हम सभी प्रमोटर होते हैं जो ए में आते हैं ना।
वो प्रमोटर, वो जो व्यक्ति था, उसकी वाणी काफी प्रभावशाली थी और उसने सभी की आशंकाओं को अपने तर्क से शांत कर दिया। और ये फाउंडेशन की उस सलाह के बावजूद हुआ कि वो कोई चार्टर जारी नहीं कर सकता, यानी कि फाउंडेशन ने इनको कोई किसी प्रकार का चार्टर या लीगल एक डॉक्यूमेंट देने की मदद अस्वीकार कर दी। और यह भी कि ए के समूह को फाउंडेशन ने उनको लिखा था कि भैया हमारा जो ए का समूह अगर दवा दारू या शिक्षा के साथ कोई चीज करने की कोशिश करता है ना, तो उसका अंत अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे अनुभव थे तभी भी फाउंडेशन के पास। तो फाउंडेशन ने लिखा कि इसका अंत अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद वो जो अति उत्साही प्रमोटर था हमारा, उस प्रचारक ने तीनों को अलग अलग कर दिया। यानी कि फाउंडेशन ने कहा कि ये दवा दारू और एजुकेशन, ये तीनों को मिक्स करके गड़बड़ी होता है, अंत में सब कुछ गड़बड़ होता है। तो उसने इसका तोड़ क्या निकाला, उसने 3 कंपनियां स्थापित की और तीनों का स्वयं ही अध्यक्ष बन गया। यानी कि एक हो जाएगी क्लब वाली, दूसरी हो जाएगी डिटॉक्स वाली या सेहत वाली, और तीसरी हो जाएगी एजुकेशन देने वाली। अब वो इतना प्रभावशाली था कि शहर के लोगों ने मदद की, पैसा डाला और एक 3 मंजिली इमारत खड़ी हो गई। चमकने लगा, कहता है बिल, रंग रोगन के साथ। और उस इमारत बनने से शहर में पूरी उत्साह फैल गया और जल्दी वहां एक्टिविटी शुरू हो गई। लगातार संचालन करने के लिए अभी उनको कायदे कानून तो बनाने ही थे। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि तभी तक हमारे ये ट्रेडिशन बने नहीं थे। ये ट्रेडिशन बनने के पहले का अनुभव है। तो उन्होंने भाई नियम बनाने पड़ेंगे, किसको एडमिट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कौन क्लब का आएगा। ऐसे करते करते उन्होंने लिखे तो 61 नियम और कायदे बन गए। अब 61 नियम और कायदे तो बन गए और गतिविधि शुरू हो गई। लेकिन अफसोस, ज्यादा देर तक वो चमकता नहीं रहा। शांति की जगह अस्त व्यस्तता ने ले ली। यह पाया गया कि कुछ शराबी शिक्षा की ओर आकर्षित थे, यानी कि वो एजुकेशन चाहते थे, लेकिन इस बात को लेकर संदेह में थे क्या वो सचमुच शराबी है भी या नहीं। यानी कि शराबियों के लिए बना हुआ है, तो शराबी बोलूंगा तो मेरे को एजुकेशन फ्री में मिल जाएगा। इस बात को लेकर थे। औरों को, जो उनके स्वभाव दोष थे, किसी को अपना कर्ज चुकाना था, क्योंकि ये जो पूरी बिल्डिंग बनी थी, इसमें कर्जे के लिए, चुकाने के लिए पैसे भी तो दिए जाते थे शराबियों को। कुछ लोग क्लब की तरफ झुकाव रखते थे, यानी कि जो लोनर्स थे, जिनका टाइम नहीं बीत रहा था या जो पार्टनर ढूंढते थे, ऐसे क्लब की तरफ झुकावते थे। तो कभी कभी यानी कि जो आवेदक थे, जो जो उसमें आना चाहते थे, उनकी भीड़ तीनों मंजिलों का रुख कर लेती थी। अब कुछ लोग सबसे ऊपर से शुरुआत करते थे, शराबी तो है लेकिन ठीक होने की बजाय वो पहले से एजुकेशन चाहते थे और नीचे तक आते थे। बिल ये बताना चाहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्राथमिक उद्देश्य था और जो ए के सदस्यों की भला करने की जो उनकी तीव्र इच्छा थी, जिसमें ये सारा उन्होंने प्रपंच रचा, उसमें बड़ा ही असंतुलन हो गया। ये सारी गतिविधि एक मधुमक्खी का छत्ता बन गई, बी हाइव बन गया था। वहां व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उलझन पर उलझने थी। एक ये समूह अपने आप में इस तरह की परियोजनाओं को संभाल ही नहीं सकता था। यह बात उन सदस्यों को देर से समझ में आई कि हमने क्या कर लिया ये। और फिर वही हुआ। यहाँ पे उदाहरण देता है, एक वेम्बली की क्लैपबोर्ड कारखाने में एक बॉयलर फटा तो बड़ा विस्फोट हुआ था, तो बिल कहता है वैसा ही विस्फोट हुआ फिर एक दिन। भय और निराशा पूरी तरह छा गई, पूरे समूह पर छा गई। जब यह स्थिति समाप्त हुई तो एक अद्भुत बात घटित हो चुकी थी। जो प्रमोटर था ना, मुख्य प्रचारक, उसे आप लकी कह लो या पूषण कह लो, फाउंडेशन के कार्य को पत्र लिखा और उसने कहा
कि काश हमने आपके सुझावों पर ध्यान दिया होता। फिर उसने एक और काम किया जो आगे चलकर एक क्लासिक घटना बन गई है। उसने ये सब एक छोटे से पेपर के ऊपर, क्योंकि 61 नियम तो उन्होंने बनाया था, इसके लिए कार्ड के ऊपर उसने लिखा मिडिल टाउन समूह नियम नंबर 62, और उस नियम नंबर 62 के आगे लिखा था, खुद को जरूरत से ज्यादा गंभीर मत समझ, डोंट टेक योरसेल्फ डैम टू सीरियसली। उसका कहना यह था कि हमने एज ए समूह अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और पूरी काया पलट करने के पीछे लग गए थे। हम सब चीजें करना चाहते थे, और सब चीजें करने के चक्कर में हम जो एक काम ढंग का कर सकते थे ना, वो भी नहीं कर पाए। और इससे बिल कहता है, इस प्रकार ट्रेडिशन 4 के अंतर्गत एक ए समूह ने गलत होने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। जैसा हमने पहले पढ़ा कि हर समूह को गलत होने का अधिकार है, उसको उतनी छूट है। हमारे पास कोई ऐसा लोहे का साँचा नहीं बना है कि हर समूह एक जैसा ही दिखेगा, एक जैसी बात करेगा, ऐसा नहीं है। समूह का अपना एक स्वभाव होगा, एक अस्तित्व होगा, एक पर्सनालिटी होगी, और उसी के साथ गलत होने का अधिकार भी होगा। इससे भी आगे बढ़कर उस समूह ने, इस अनुभव ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए एक बड़ी सेवा की, क्योंकि इस सारे में से जो सीख मिली, उससे उस सारे लोगों ने विनम्रता से अपनाने की तैयारी दिखाई, और जो प्रमोटर था वो हंसते हुए फिर से खड़ा हुआ और बेहतर कार्यों की ओर आगे बढ़ा। यहाँ तक कि पूरे स्वप्न का मुख्य शिल्पकार भी, वो प्रमोटर, अपने टूटे हुए सपनों के खंडरों में खड़ा होकर खुद पर हंस सका, अपनी फुलिशनेस पर हंस सका। और यही है एक्मे ऑफ ह्यूमिलिटी। बिल कहता है विनम्रता की पराकाष्ठा। तो इस ट्रेडिशन के अंदर, परंपरा 4 के अंदर, स्वशासित स्वतंत्रता, हर एक समूह अलग है, हर समूह अपनी परिस्थितियों, संस्कृति और समझ के अनुसार काम कर सकता है, समूह को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ए ने ये जान लिया कि एक ही नियम सब पर थोपना विनाशकारी हो सकता है, इसके लिए हर समूह का अपना एक अस्तित्व बना। दूसरा मुद्दा इस ट्रेडिशन में है गलत होने का अधिकार, राइट टू बी रॉन्ग। ए ने अनुभव से सीखा, समूह भी इंसानों की तरह ही सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर। गलतियां विनाश नहीं, शिक्षक होती हैं। इसके लिए परंपरा 4 कहती है हर समूह को गलत होने का भी अधिकार है, जब तक कि वो गलती पूरे एक को नुकसान न पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। तीसरा मुद्दा है केवल 2 सीमाएं बनाई हैं। इस विशाल स्वतंत्रता के बीच ए ने केवल 2 सुरक्षा रेखाएं हमने जो ऊपर पढ़ी, वो ये थी कि कोई भी समूह ऐसा कार्य न करे जिससे पूरे ए को गंभीर नुकसान पहुंचे, और 2, कोई समूह किसी बाहरी संगठन, विचारधारा, धर्म, राजनीति या व्यापार से स्वयं को न जड़े। बाकी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता है। यह ऑटोनॉमी क्यों जरूरी है? क्योंकि नियंत्रण अहंकार से आता है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास स्वतंत्रता में होता है, वो कंट्रोल में नहीं होता आध्यात्मिक विकास। और तो और मजबूरी से रिकवरी नहीं होती, रिकवरी स्वतंत्रता से होती है। और विविधता एक ही ताकत है। परंपरा 4 ने हमें बताया एकता नियंत्रण से नहीं, सम्मान और विवेक से आती है। और तो और आखिरी पॉइंट में जो मिडिल टाउन समूह की सीख हमको मिली है, वो सीख हमें ये बताती है कि अपने अनुभव से सीखें और विनम्रता की ओर आगे बढ़ें। परंपरा 4 में कुछ आध्यात्मिक संदेश भी हैं, जैसे विनम्रता का, सहनशीलता का, जिम्मेदारी का, आत्म जागरूकता और दूसरों के रास्ते में दखल न देने का। ये था परंपरा 4 ट्रेडिशन 4 का जो बाकी बचा हुआ अनुवाद। थैंक यू। ओवर टू यू कुशल। तो ये जो ट्रेडिशन है, यहाँ पर पहली बार हमें इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट
जिसे हम लोग कहते हैं AA एज अ होल। सो यहाँ पर आप जैसे बोलते हो कि ग्रुप्स और AA एज अ होल, AA एज अ होल यानी क्या? सो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो हर स्तर पे अलग अलग लेवल का फ्रीडम है। अभी मैं AA मेंबर भी हूं और एक व्यक्ति भी हूं। अब व्यक्ति होने के नाते मैं बाकी सारी चीजें भी कर सकता हूं। मैं काम कर सकता हूं, दूसरे किसी एनजीओ में जाके दूसरे किसी क्षेत्र में काम कर सकता हूं, दूसरे किसी एनजीओ के साथ में जाके संलग्न हो सकता हूं। मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकता हूं या काउंसलर करके किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके मैं नौकरी कर सकता हूं। तो इंडिविजुअल को एक अलग टाइप का फ्रीडम है, लेकिन जब भी मैं AA मेंबर करके जाता हूं तो मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता हूं। तो व्यक्तिगत रूप से पोषण करके एक व्यक्ति करके मुझे पूरा फ्रीडम है, मैं कहीं पर भी काम करूं, कुछ भी करूं, मैं टीवी पे आऊं, मेरा फेसबुक पेज हो, मैं लोगों को इंटरव्यू दूं, वो वैयक्तिक मैं जो है वो कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जहां तक मैं मेरे AA का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, AA का सदस्य करके समाज के सामने जा रहा हूं या किसी और को मिलने जा रहा हूं या प्रेस के सामने जा रहा हूं, तो वो टाइम पे मुझे बंधन आएंगे ट्रेडिशंस के। सो AA ग्रुप, जब भी मैं AA ऑन बिहाफ ऑफ AA ग्रुप जब भी मैं काम करने चालू करता हूं, सपोज मेरे ग्रुप ने एक कमिटी बनाई, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कमिटी, कि थाना के अगल बगल में जो भी रिहैब सेंटर्स है वहां पर टेम्पररी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शुरू करो। इसका मतलब जब भी रिहैब से डिस्चार्ज होता है कोई आदमी, तो वो डिस्चार्ज होने से पहले हम रिहैब सेंटर में जाते हैं, वहां पर AA की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, AA के बारे में बातचीत करते हैं, वहां पर पहचान होती है लोगों के साथ, और जब भी वो व्यक्ति का डिस्चार्ज होता है तो मैं सीधा उसको लेके AA में आता हूं। अभी मैं AA ग्रुप का सदस्य करके ये टेम्पररी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करने को जाता हूं। मैं रिहैब सेंटर के पेरोल पे नहीं हूं, रिहैब सेंटर से मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता, लेकिन वहां से निकलने वाले हर व्यक्ति को AA की सोबराइटी मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं ये ऑन बिहाफ ऑफ AA ग्रुप ये सेवा देता हूं। तो जब भी मैं ऑन बिहाफ ऑफ AA ग्रुप यानी AA का प्रतिनिधि करके मैं जाता हूं, तो मुझे सभी ट्रेडिशंस लागू होती है, और जब भी मैं इंडिविजुअल करके जाता हूं तो मैं कर सकता हूं। तो AA ग्रुप की स्वतंत्रता क्या है? जैसे वैयक्तिक मेरी स्वतंत्रता कुछ और थी, वैसे अभी AA ग्रुप करके मेरी स्वतंत्रता क्या क्या है? तो कई बार अपने यहाँ पर चर्चा होती है कि अरे ये ग्रुप में बाहर के लोगों को बुलाया था, कोई व्यक्ति आया और REBT के ऊपर सेशन लेके गया, AA में ऐसा होता है क्या? तो AA के वो समूह ने एक आध साइकोलॉजिस्ट को बुला के REBT सेशन लेने का, या एखादा योगा गुरु को बुला के योगा का सेशन लेने का, या एखादे मेडिटेशन एक्सपर्ट को बुला के मेडिटेशन कैसे करने का वो सीखने का, या कोई भी विषय अगर उनको एक्सपेरिमेंट करना है, तो AA के वो समूह को अगर वो समझ में आता है कि ये मेरे मेंबर्स के लिए जरूरी है और ये मैंने करना चाहिए, तो वो जरूर कर सकते हैं। अब ये करते करते हो सकता है कि एक आध योगा गुरु हमेशा मेरे यहाँ पर आने लगा, और कल जाके उसने उसकी योगा इंस्टीट्यूट और मेरा AA ग्रुप ये दोनों का जॉइंट वेंचर करके चालू हो गया, इधर गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए जो चेतावनी दी हुई है कि AA ग्रुप के अंदर आपको अगर कुछ करना हो, ट्राई करना हो, आपको वर्कशॉप्स करने हो, आपको काउंसलिंग सेशंस करने हो, या आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, आप जरूर अगर आपके समूह की सत्सद विवेक बुद्धि आपको अनुमति देती है तो जरूर वो करें। लेकिन जो दो धोखे वहां पर बताए हैं कि किसी और के साथ संलग्नता नहीं करे,
और दूसरे किसी समूह को इसकी तकलीफ हो, ऐसा नहीं करे। तो ये जो एग्जाम्पल बताया है, बड़े पैमाने पे अलग अलग प्रकार के फ्रीडम वो ग्रुप ने अनुभव करके देख लिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने का अगर अधिकार नहीं होता तो शराबी हमारे मानने को तैयार नहीं होते। हर एक व्यक्ति को मेरे ग्रुप के फंक्शनिंग में और सुधार करने का, कोशिश करने का अधिकार है, और अगर गलती होती भी है तो कोई बात नहीं, दोबारा वो आ सकता है। तो दूसरा तत्व यहाँ पर, ये पूरे स्टोरी का जो नतीजा है वो ये है कि हमें आध्यात्मिक तत्वों का पालन करना है। अगर हमको जिंदा बचना है तो आध्यात्मिक तत्वों का पालन करना पड़ेगा। हमारे को बाकी कुछ नहीं है, पैसा नहीं कमाना है, प्रॉपर्टी नहीं कमाना है, प्रसिद्धि नहीं कमाना है, हमको लीडरशिप नहीं करनी है, हमको दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा एक में वो उद्देश्य होना चाहिए, वो है सोब्राइटी। और वो सोब्राइटी भी हम लोग आध्यात्मिक तत्वों का पालन करते हुए, तो मेरे अंदर का जब ये स्वार्थ जाग जाएगा मेरे अंदर, देखो मैं आज शराब बंद हो जाने के बाद में मेरे अंदर के सभी जो सोशल स्किल्स है वो बाहर आ जाते हैं। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्या किटी बॉक्स में यार 10-10 5-5 रुपए डालते, सब लोगों ने 200-200 500 रुपए डालना चाहिए, बड़ा काम करते यार कुछ। तो मेरे अंदर का बिजनेसमैन जाग जाता है, किसी के अंदर का फाइनेंस वाला जाग जाता है, तो वो बोलता है अरे आजकल किटी बॉक्स 500 रुपए जमा हुआ, 200 रुपए का ही चाय बांटेंगे और 300 रुपए जमा करेंगे। अब ये हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से अपना जो दुनिया में पाया हुआ जो स्किल है वो स्किल को ए में लाने का प्रयास करता है। तो अगेन यू हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, तो आप आके ये गलतियां करके सीख सकते हो, लेकिन सबसे पहला सवाल आपने पूछना है कि ये करने से किस प्रकार से ये एक्ट आध्यात्मिक होगा। यानी ये तत्वों का मैं पालन करूंगा, ये अगर मैं मेरी आइडियाज लगाऊंगा तो उससे मैं कोई आध्यात्मिक गोल पूरा कर रहा हूं या सिर्फ मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज फुलफिल कर रहा हूं। कई सारे समूह आप देखोगे तो 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए बैंक अकाउंट में है, क्यों आगे क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि जो मेंबर्स की खुद की आर्थिक असुरक्षितता जो है वो एक ही ग्रुप में भी लेके आते हैं, नहीं नहीं रहने दे जरूरत पड़ेगी। अरे काय की जरूरत पड़ेगी, अपने को कोई पैसा नहीं कमाना है, यहाँ पर कोई अपना प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं। तो जो ये पैसा है वो लोगों के काम ही आना चाहिए। सो हमेशा हमें ये देखना है कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका क्या स्पिरिचुअल एडवांटेज है। मैं ये जो तत्व जो बनाए, ये जो ट्रेडिशंस बनाई है, ये तत्वों का पालन करूंगा तो ही मैं बचूंगा। क्योंकि दुनिया ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। 1941 से लेके 46 के पीरियड में BW कहता है कि हर प्रकार के ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन में से एक को जाना पड़ा है। तो उसमें से सरवाइव करते हुए हमको ये समझ में आया कि इन तत्वों को 100% फॉलो करने में हमारी सेफ्टी है। तो दूसरा जो चेतावनी दिया है कि एए का ग्रुप या एए कोई भी इंडिविजुअल एए एज अ होल को कैसे धोखा दे सकता है, धोखा कर सकता है। सो हमारे आगे जो ट्रेडिशंस चेकलिस्ट के सवाल है उनमें से कुछ अपने को पॉइंट्स मिलते हैं। उसका सबसे पहला पॉइंट्स, यानी हमारे को 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट्स, ये 36 आध्यात्मिक तत्व दिए हुए हैं। तो इनका जैसे कि वैसा पालन करना ये मेरे नियमों में है। अगर इनमें से अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे स्टेप नंबर 8 और 9 पसंद नहीं है, बहुत ह्यूमिलेशन होता है, वो नहीं, वो छोड़ के हम अभी एक काम करेंगे, मेरा ग्रुप जो है ना, रिवायर ग्रुप है, हम लोग 10 स्टेप्स का ही प्रोग्राम फॉलो करेंगे, तो नहीं। हम लोग किसी भी प्रकार से जो हमारा जो लिटरेचर है, कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर, और हमारे जो तत्व है, इनके साथ में खिलवाड़ या शॉर्टकट या चेंज बदलाव ये हम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा धोखा हम लोग एए एज अ होल को कर सकते हैं। अगर मेरा ग्रुप बोलता है कि नहीं हमारा ग्रुप 12
स्टेप कॉल्स नहीं करता है, या हमारा ग्रुप जो है ये सेल्फ सपोर्ट वाला ट्रेडिशन नहीं फॉलो करता है, हम लोगों से पैसा लेते हैं, तो ये एए को धोखा है। क्योंकि अगर कल मुझे एक अनुभव याद है, हमारे ग्रुप का एक सदस्य था जो बड़ा इच्छुक हुआ करता था कि उसको हमारे अंतर समूह में सेवा करनी थी, और वो भी पीआई चेयरमैन करके। तो कुछ साल की सोबराइटी उसके पीछे थी, और वैसे भी सेवा में कम ही लोग आते हैं। तो इस व्यक्ति को परमिशन मिल गई और वो मतलब इलेक्ट हो गया, और वो हमारे इंटर ग्रुप का पीआई चेयरमैन बन गया। अब जैसे वो पीआई चेयरमैन बन गया, उसने अलग अलग जगह पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए। तो उसमें से उसने रोटरी के क्लब्स में जाके शुरुआत की, वहां पर जाता था, अपना अनुभव कथन कहता था, और अनुभव कथन होने के बाद में किटी बॉक्स घुमाता था वो मीटिंग रूम में, रोटरी में। और लोगों को मालूम नहीं है तुम्हारा सेल्फ सपोर्ट का ट्रेडिशन, तो लोग उसमें डालते थे वो पैसे में, और ये पैसा ये खुद के जेब में डालता था। अब वो आदमी के मिसफॉर्च्यून से मुझे उनमें से जहां पर वो गया और ये कलेक्ट किया, बड़ा एक रोटरी क्लब था, और वहां पर काफी अच्छा कलेक्शन हुआ उसका। तो वहां का एक सदस्य था, वो मुझे मिला और मुझे बोला, अरे यार आप लोगों ने ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि वो जो आपका पहला जो रूल हुआ करता था, आप बाहर वाले लोगों से पैसा नहीं लेते थे, वो बदली कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। अभी हमारे जैसे कुछ हितचिंतक है जो सचमुच आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैं बोला, कौन सा रूल चेंज कर दिया? नहीं नहीं, बोले अभी आप बाहर का पैसा लेते हो ना, लोगों के डोनेशंस वगैरह एक्सेप्ट करते हो ना। मैं बोला, नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये हमारे जो मूलभूत तत्व है हमारे अस्तित्व के, उसमें से एक है, तो ये हो ही नहीं सकता। अरे बोले, ऐसा कैसा? आपके वो सर्विस सेंटर, आपका जो सर्विस बॉडी है, वहां के वो व्यक्ति आए थे, उन्होंने बात किया, किटी बॉक्स घुमाया और अच्छा खासा कलेक्शन हुआ। फिर जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि ये भाई जाके एए के नाम पर पैसा जमा कर रहा है किटी बॉक्स में, और बाकी किसको पता भी नहीं चलेगा, ना उसके साथ में कोई जा रहा था, वो अपना ऑफिशियली सेल्फ अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन करके जा रहा था और किटी बॉक्स घुमाता था। अब देखिए, एक ट्रेडिशन को ट्विस्ट करने के वजह से बाकी लोगों के सामने एए की इमेज क्या हुई। तो वो लोग, चलो ठीक है, वो सेवा भावी लोग थे और वो उनको ऐसे लगा, और वो फॉर्चुनेटली जल्दी ही समझ में आ गया, इसके लिए बात पकड़ी गई। लेकिन नहीं तो ये शायद बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाता, या और भी बड़े बड़े मंचों पर जाता और ए के नाम पे पैसा इकट्ठा करता, और कल जाके लोगों को पता चलता तो लोगों के दिमाग में क्या असर होता उसका। इसीलिए कोई भी हमारा जो तत्व है या हमारा लिटरेचर है, इसमें से कोई भी एक भी वर्ड हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसमें से कुछ भी चेंज कोई भी इंडिविजुअल या समूह करने को जाएगा तो ये जो है, ये दैट इज कंसिडर्ड एज इंजुरी टू एए एज अ होल, यानी पूरे एए का नाम वो खराब कर सकता है। और फिर अगला धोखा कौन सा है? स्टैंडर्ड होने वाले जो धोखे हैं वो है पॉलिटिक्स, रिलीजन और कम्युनिटी सर्विस। पॉलिटिक्स, अभी हमारे यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, और वो काफी अच्छा काम भी करते हैं, और वो चाहते थे जब भी इलेक्शंस वगैरह आते, वो कम्युनिटी के साथ में काफी बार का ऐसे हर एक लोकेलिटी में जाके वहां पर काम करते। और उनके एक लीडर थे, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हम आपके लिए सभाएं रखेंगे, जन जागृति, मतलब हम लोग मंच पर से लोगों को, हमारी जो कार्यकर्ता है वो सभी घरों घरों में से लोगों को लेके आएंगे और आपको प्लेटफॉर्म देंगे, और वहां से आप आपकी एक की बात करो। पहले तो हमको लगा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये लोकल लेवल का काम है और घरों घरों में, झुग्गी झोपड़ी में जाके अगर हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा तो
इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन जब भी पहली ही सभा करने के लिए हम लोग गए तो वहां पर देखे तो ये जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके बड़े बड़े झंडे, उनके लीडर्स के बड़े बड़े फोटोज, स्टेज पे उनके बुकेज, हार बीर एक्सचेंज, और हमको सडनली रियलाइज हो गया कि इनको उनके बैनर के नीचे कुछ काम करना है, समाज के लिए जो काम करना है उनको उनके बैनर के साथ में काम करना है, और ए को हम लेके आए आपके लिए इस दौर पर करना है। अभी ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होता है। अगर हम लोग वहां पर स्टेज पे खड़ा रह के हम लोग कैसे ऑटोनॉमस है, हम लोग कैसे किसी भी पॉलिटिकल संगठन से अलिप्त है, ये जब भी बोलना चालू करते हैं तो किसी को तकलीफ भी हो सकती है, किसी को बुरा भी लग सकता है। और साथ ही साथ में हम लोग अगर इनके साथ में ही काम करें तो लोगों को लगने लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी की ये संगठन है। तो ये जो है ये एए के नाम के लिए बड़ा धोखा हो सकता है। या जैसे रिलीजन, आप जानते हो कि हमारे को कोई रिलीजन्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, खास करके कैथोलिक कम्युनिटी ने। कोई भी चर्च में जाओ, कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में जाओ तो ए को जगह मिलती है। यहाँ तक कि आज बिशप ने खुद ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि जहां पर भी ए को जरूरत पड़े वहां पर एक हाथ बढ़ाए। और हम लोग बहुत ग्रेटफुल है इसके बारे में, इसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल है। और कई बार जब भी मास होता है तो ए मेंबर्स को बुलाया जाता है शेयरिंग करने के लिए, और ए मेंबर जाके बात भी करते हैं। और कई बार हमारे जो कैथोलिक मेंबर्स है वो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी तरह से बात भी कर सकते हैं, तो कई बार कैथोलिक मेंबर्स हमारे जाके बातें करते हैं। और इसमें से शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के सालों में एक ऐसा इंप्रेशन हो गया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये क्रिश्चियन लोगों का ही, रिलीजन का ही एक एक्सटेंशन, एक जो सेवाएं रहती है उनकी, जो अलग अलग सेवाएं रहती है उस प्रकार की सेवा है, ऐसी इमेज हो गई, एक इंप्रेशन हो गया, जो कि एक्चुअली था नहीं। लेकिन इम्प्लाइड एफिलिएशन इज ऑल्सो अगेंस्ट अवर ट्रेडिशन, यानी किसी भी तरीके से लोगों के सामने ऐसा चित्र दिखाई दे कि ये तो यही जगह पे मिलता है और इन्हीं लोगों के जरिए होता है, तो उनको तो यही लगेगा कि ये एक आध रिलीजन का प्रोग्राम है। धीरे 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 जब भी लिटरेचर बाकी भाषा में बना, और मराठी में और हिंदी में और गुजराती में और अलग अलग भाषाओं में जब ये मीटिंग्स होने लगी तो ये असर निकल गया। लेकिन ये हमेशा से ही एक इशू रहता है कि जब भी हम लोग किसी दूसरे संगठन के साथ में काम करते हैं तो हर टाइम पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे से हमको व्यक्त करना होता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन कोऑपरेशन विद, हम सहकार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, और एक दूसरे के ये कार्य के लिए हम दो साथ आए, बल्कि है हम लोग दोनों अलग अलग। इसी प्रकार से जो कम्युनिटी के एफर्ट्स होते हैं, कम्युनिटी जब ये अपना कम्युनिटी में कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कुछ एनजीओज होती है, इसी प्रकार का वो चाहते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल फिलहाल आज नहीं कल शाम को मुझे एक रोटरी की सदस्य मिली थी। उन्होंने कहा कि हमने डोंबिवली में एक रोटरी क्लब के जगह में डी एडिक्शन प्रोग्राम चालू किया है। सो मैंने उनको पूछा कि क्या किया आपने, एग्जैक्टली क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि हमने जगह दी है और हम लोगों ने कुछ साइकेट्रिस्ट लोगों को अरेंज किया है, और वहां पर वो आके बैठते हैं और हम लोग अरेंज करते हैं कि जहां पर भी कम्युनिटी में किसी भी प्रकार की एडिक्शन की समस्या हो, फिर वो सिगरेट हो, शराब हो, ड्रग्स हो, तो उनको सबको वहां लाते हैं और साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन करते हैं। तो आप वो ए का काम करते हो तो ए को बुलाओ ना वहां पर। मैं बोला मैं जरूर बुलाऊंगा, लेकिन मैं उनको समझाया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य आएंगे तो वो आप क्या चाहते हैं, मतलब वो काउंसलिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो काउंसलर्स नहीं है, वो मीटिंग कर सकते हैं, या
अगर वो साइकियाट्रिस्ट ने कोई शराबी है उनको मदद करने के हेतु उनको एए में भेजना है तो उनको आके बात कर सकते हैं, उनको एए मीटिंग में लेके जा सकते हैं। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, ये कोई चार्जेस लेके फीस लेके वहां पर आके बैठ नहीं सकते। तो समाज को ये सब पता नहीं रहता है, लेकिन हमें पता है कि जब भी सामने से आता है तो वी हैव टू मेंटेन आवर इंडिपेंडेंट स्टेटस। हमने अपना जो अलग से जो स्टेटस है ये बनाए रखना होता है। तो ये हमारे को सीख मिली है, ये जो कहानी जो बिल डब्ल्यू ने दिया है रूल 62 वाला, कि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग वेल, हमारा जब भी कार्यक्रम अच्छे से काम करने लगा तो हर एक जगह से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिर्फ शराबियों के लिए ये क्यों सीमित कर रहे हो, समाज में बहुत सारी समस्या है, हर समस्या के लिए एक का कार्यक्रम लग सकता है, लग पड़ता है। और तभी हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है उसी के ऊपर बिल डब्ल्यू ने एक ये दिया है कि हम जानते हैं कि शायद ये जो तत्व है ये आध्यात्मिक है और समाज की कई सारी समस्याओं के लिए इन 12 कदमों का शायद इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम शराबी है और हमारा फोकस सिर्फ शराबियों को मदद करना है। और हमें कोई एतराज नहीं है कि बाकी लोग अगर ये 12 कदमों का इस्तेमाल करें और अपना अपना मदद कर ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा जो कार्य है ए एज अ होल, वी विल ओनली चूज टू वर्क विद अल्कोहलिक्स। हम सिर्फ शराबियों के साथ में ही काम करना चालू करेंगे। सो ये जो ट्रेडिशन है अंत में हमें एक चेतावनी देती है कि अगर आप एक ग्रुप हो और आपको कुछ अलग, कुछ हट के कुछ ट्राई करना है, जैसे मुझे याद है कि हमारी ही एक प्रांत में सोब्राइटी कैंप्स यानी एक एए के सर्विस बॉडी ने एक लोकल हॉस्पिटल को पकड़ा और वहां के रोटरी को पकड़ा और हॉस्पिटल्स को पटाया कि हम लोग शराबियों को पकड़ के लाएंगे, आप उनका फ्री डिटॉक्स करवा के दो, क्योंकि उसकी शराब शरीर में से जब तक जाएगी नहीं तब तक उसके सर में से भी निकलेगी नहीं। तो शरीर में से बाहर निकलने के लिए हॉस्पिटल की मदद करेंगे। और वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने थे उसके लिए रोटरी की मदद लेंगे। और जब भी ये शराबी वहां पर आके तो गांव गांव में रिक्शा के ऊपर वो भोंगा लगा के, भोंगा यानी क्या, वो लाउड स्पीकर लगा के शराबियों को कि बिना मूल्य शराब से दूर हो जाए वगैरह वगैरह अनाउंस करा के जब शराबी आते हैं, गरीब शराबी आते हैं, तो उनको सभी को ये हॉस्पिटल में भर्ती किया। वो हॉस्पिटल में बेड्स और मेडिकल सुपरविजन के अंदर उनको उनके शरीर में से शराब को निकालने का, डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो किया। और ये करते करते वो डिटॉक्सिफाई होते होते वहां पर ए मेंबर्स रुकते थे और हर एक व्यक्ति के साथ में इंडिविजुअली जाके उसके बेड पे बैठ के उसको संदेशा दे के, उसको मीटिंग्स कैसे करने के, एक शेयरिंग कैसा करने का वो सिखा के, लिटरेचर की पहचान करा के उन्होंने काम करना शुरू किया। और कुछ ही सालों में हर एक नियर बाय गांव में, तालुका प्लेस और फिर छोटे छोटे गांव में भी ए के समूह चालू हो गए, क्योंकि किसी भी एक गांव में 2 या 3 जब शराब से दूर हो गए तो वहां पर एक ही ग्रुप की शुरुआत हो गई। सो ये एक एग्जाम्पल था कि कोऑपरेशन किया, यानी रोटरी को जो मदद करनी थी तो उनकी मदद की भावना के साथ में उनके साथ में कोऑपरेशन करते हुए, गांव गांव में उसका अवेयरनेस करते हुए, किसी सेवा भावी हॉस्पिटल के साथ में कोऑपरेशन करके उनका फ्री डिटॉक्स करवा के, साथ ही साथ में डिटॉक्स होते होते उनको संदेशा देके, तो समाज में जो हितचिंतक या शराबी के लिए काम करने वाले बाकी के एनजीओज है, उन सब के साथ में हाथ मिला के हम जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ में संलग्नता से नहीं। तो अगर हम लोग इस प्रकार का कोऑपरेशन वाला काम कर रहे हैं और हमें डाउट आ रहा है कि ये हम कोऑपरेशन कर रहे हैं या संलग्नता कर रहे हैं, तो ऐसे मामले में जरूर जीएसओ को खत लिखे। आपके अंतर समूह में अगर क्लैरिटी नहीं है तो जीएसओ को खत लिखे, भाई हम लोग ये बड़े पैमाने पे कुछ ऐसा करने जा रहे, तो कहीं इसमें से कोई एफिलिएशन का खतरा तो नहीं है। और फिर
अपने मन की खातिरी करते हुए फिर इस प्रकार के काम करें। तो जो चेतावनी है ये हमें काम करने से रोकती नहीं है। चेतावनी सिर्फ काम करते हुए जो डिफरेंस है कि इंडिविजुअल के फ्रीडम अलग है, एए समूह के फ्रीडम अलग है, लेकिन एए एज अ होल ये जो फेलोशिप जो है वहां पर बिल्कुल ही कम फ्रीडम है। वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट पालन किया जाता है ट्रेडिशंस का। तो ये जो ग्रेडेशन है, ये 3 रिलेशनशिप का जो ग्रेडेशन है, वो ये ट्रेडिशन हमें ऑटोनॉमी का जो ये प्रिंसिपल है ये इसमें से बताता है। इससे ज्यादा अगर जानकारी इस विषय की लेनी है तो जरूर हमारी ट्रेडिशन चेकलिस्ट डाउनलोड करिए। ये हमारे यहाँ से ट्रेडिशन का फॉलो हो रहा है कि नहीं ये जानने के लिए कुछ सवाल होते हैं, तो ये ट्रेडिशन चेकलिस्ट डाउनलोड कीजिए और उसमें आप ग्रुप ऑटोनॉमी के जो सवाल है उनके ऊपर गौर करिए, उनके ऊपर चर्चा करिए। कई सारे लोग जब भी ग्रुप इन्वेंट्री करते हैं तो ट्रेडिशन चेकलिस्ट के सवाल लेकर अपने ग्रुप की इन्वेंट्री लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट एक्सरसाइज। तो दोस्तों इस ट्रेडिशन के बारे में जो भी हमको शेयर करना था वो हुआ है। अभी अगर किसी के सवाल हो गए या कोई और भी इस विषय के बारे में शेयर करना चाहता हो तो प्लीज गो अहेड। मैं अपने आप को यही रोकना चाहूंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी एंड भूषण जी। दोस्तों, सवाल या अनुभव शॉर्ट में 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के हम लेने जा रहे हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो ये मीटिंग का अनाउंसमेंट होती है, जो लिंक हम भेजते हैं, उसी में 7th ट्रेडिशन सेल्फ सपोर्ट का हमारा यूपीआई आईडी दिया हुआ है। तो जो भी हमारे सदस्य वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो उसमें जरूर कर सकते हैं। और एक बात मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे रवि भाई का, रवि जी का, कि मेरे अस्ताव्यस्तता को उन्होंने संभाल लिया। और शुरू में मेरा जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई उस सब में आपने मुझे शांति से स्वीकार कर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और हम अभी अगर सवाल है तो आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, या आप माइक ओपन करके अपना सवाल रख सकते हैं, या कोई अनुभव है तो अनुभव शेयर करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए। जी, हेलो क्वेश्चन? यस प्लीज। हेलो हाँ, गो अहेड, वी कैन हियर यू। हाँ, सुन पा दोस्तों रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम राहुल है, शराबी हूँ। हेलो। अभी जैसा इसमें पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस को धोखा नहीं है, आपने इसके बारे में बोला, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे कई ट्रेडिशंस है जो हमारे से ब्रेक होते हैं। और कई जगह मैंने देखा कि जैसा स्कूल के नाम से ग्रुप का नाम होना, वहां पे सब ओल्ड टाइमर है। अगर और मुझे ऐसा पता चला कि भाई हम ट्रेडिशन किसी को सिखा नहीं सकते, ऐसा है, हमको यूज करना है। तो ऐसे कई मुद्दे, मैं 3-4 मुद्दे यहाँ पे 2-5 मिनट में बोलूंगा। आपको इसके ऊपर सवाल का जवाब अगर आपके यानी आप उसको समझ के आप उसके ऊपर बोल सकते हो। और दूसरा मुद्दा ऐसा है कि हम ट्रेडिशन, मैंने कई बार सुना कि हमको खुद को फॉलो करना है, क्योंकि ट्रेडिशंस का अगर हम किसी को समझाने जाते हैं तो वहां पे विरोध हो सकता है या एक अशांति फैल सकती है ग्रुप में। तो इसके लिए कई चीजें मेरे मन में कई दिनों से दबी थी, तो मैं आज यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे ग्रुप का नाम स्कूल के नाम पे होना, एक मैंने देखा है, एक ही आदमी 3-3, 4-4 साल तक सेक्रेटरीशिप करना, यानी वहां पे सब लोग ऐसे होशियार है, सब लोग है, लेकिन वो सेक्रेटरी वही रोटेशन पद्धति का उसमें उल्लंघन हो रहा है। एक ही आदमी 2-2, 3-3 ग्रुप का है, 2-2 ग्रुप में किटी वगैरह संभालना, या फिर आईजीआर बन के जाना, तो ये भी हो रहा है। अच्छा, इंटर ग्रुप भी ऐसी जगह है जहाँ पे यानी एक ही घर में 2 भाई रहते हैं, ऊपर नीचे, नीचे धंधा चल रहा है और ऊपर इंटर ग्रुप है। तो
नया आने वाला व्यक्ति और जैसा इंप्रेशन खराब होता है उससे, दिखता गलत है वो, इस तरीके से थोड़ा वो भी मेरे मन में खटक रहा था। और ज्यादातर शराबी क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर कभी किसी का खुन्नस रहा, रिजाइनमेंट रहा, तो भाई अभी पूषण भाई और लकी भाई की दुकान चल रही है तो उसी समय वो दूसरी दुकान खोल देते हैं। तो ऐसा ज्यादातर मैंने देखा है, ये इंटरनल चीजें है। और कई सारे जो ओल्ड टाइमर्स है इसको समर्थन भी देते हैं और इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होती है, और उनको शायद पता भी होता है कि ग्रुप का ये उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं सामने से, डर के मारे बोलते नहीं है, या फिर वो न्यू कमर को एवर नहीं करते कि भाई वो उसका स्पॉन्सी होता है, या फिर एक ही ग्रुप में आजू बाजू में सब ये चीजें चलते रहती है, एक संगठन जैसा हो जाता है, तो उसको एवर भी नहीं किया जाता है। बेचारा नया न्यू कमर रहता है, उसको प्रोग्राम लेने की पड़ी होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने सालों में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये के अंदर की चीज है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन ये जो चीजें है ये नया आने वाले व्यक्ति के ऊपर इसकी इंप्रेशन खराब होती है। और दूसरा मैं ऐसा देख रहा हूँ, मेरे को एक विचार आया कि जिस तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस की एक जगह की संख्या 300 या 400 लोगों की है, उससे ज्यादा 700 लोग 800 लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में है। तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आज से 25 या 30 साल बाद या 20 साल ऐसा खतरा नजर आ रहा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस विलुप्त हो जाएगा, अल्कोहलिक एनोनिमस दुनिया में नहीं रहेगा और ये पूरा बिजनेस बन जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये अभी चल रहा है अल्कोहलिक एनोनिमस का, उसका अंदाजा मुझे ऐसा लग रहा है। राहुल जी थोड़ा शॉर्ट और हो सवाल गया के सवाल के साथ में काफी जवाब भी आपने दे दिया है। ओके, आपकी दृष्टि से भूषण जी या लकी जी। अगर मैं कहूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद कई मेंबर स्लिप होते हैं, रिलैप्स होते हैं, इससे एए को धोखा है, तो मैं कहूंगा इससे एए को धोखा नहीं है, उससे वो व्यक्ति को धोखा है जो बार बार स्लिप होता है। तो तत्व जो है वो कभी गलत नहीं होते, व्यक्ति गलत हो सकता है। अगर आपके एरिया में ऐसा हो रहा है तो मैं जानता हूं कि शायद ट्रेडिशंस का पूरा नॉलेज न होने की वजह से या इस विषय पर चर्चा न होने की वजह से ये ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एखादा समूह है जो 30 साल पुराना समूह है और वो किसी स्कूल के नाम से चल रहा है, तो उससे संलग्नता व्यक्त होती है। तो वो जो समूह के सदस्य है उनमें से 2-4 सदस्यों को ट्रेडिशंस का पता होगा भी, लेकिन समूह की सत्सद विवेक बुद्धि की सभा में अगर ये पॉइंट को रेज करे तो हो सकता है कि मेजॉरिटी जो है वो बोले कि नहीं 30 साल से हम लोग यही नाम चल रहे, कोई हमको ट्रेडिशन मत सिखाओ, हम यही नाम से चलाएंगे। तो कई बार द मेजॉरिटी का जो निर्णय होता है ये गलत भी हो सकता है। तो अगर उसने वो स्कूल के नाम से लिखा तो उसके ऊपर हम लोग कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो ले नहीं सकते। हमारी सभी ट्रेडिशंस है ये सजेस्टेड प्रिंसिपल्स है, और हमारा एए का इतिहास ये बनाता है कि इन ट्रेडिशंस का पालन करने से हम सबका लाभ है और एए को कम से कम धोखा है। इनका पालन नहीं करने की सजा जो है वो पूरे एए को नहीं भरनी है, वो उसी समूह को भरनी होगी या उसी व्यक्ति को भरनी होगी जो ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे को सवाल यह है कि अगर आपको दिखाई देता है ये गलत हो रहा है, तो आपके समूह के द्वारा आपके सत्सद विवेक बुद्धि का ये जो पत्र है ये आप आपके अंतर समूह को भेज सकते हो कि भाई ये चीजें है, ये ट्रेडिशंस का वायलेशन नहीं है क्या, या हमें लगता है कि ये ट्रेडिशंस का वायलेशन है, तो अगर ये करेक्शन किया जाए तो ये सबके लिए और एक के लिए हित का होगा। इस प्रकार का लेटर आप इंटरग्रुप को भेजो। इंटरग्रुप के आईजीआर की मीटिंग में ये चर्चा होगी, सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो ट्रेडिशन का ब्रेक लगता है तो ये होना चाहिए। इसके बावजूद जैसे हमने कहा है कि वो ग्रुप अगर बदलना नहीं चाहे, वो अगर ग्रुप वही नाम रखना चाहे, तो दे हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, यानी उनको गलतियां करने का अधिकार है। आज उनके यहाँ पर शायद ट्रेडिशंस के प्रति इतना प्यार नहीं है, इतना सम्मान नहीं है, इतना आदर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेंबरशिप बदलती है।
ये आज जो ओल्ड टाइमर्स है वो कल नहीं रहेंगे, और कल जो न्यू कमर्स आएंगे वो ट्रेडिशंस को जानने वाले होंगे, तो ऑटोमेटिकली नाम बदलेगा। अगर आप पिछले 70 साल का अनुभव देखते हो या 90 साल का दुनिया का अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अनुभव देखते हो, तो ये सभी गलतियां करते 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 ही हम लोग सीखे हैं, समझे हैं और अपने आप को करेक्ट करते आए हैं। तो ह्यूमिलिटी के साथ में हमारी गलती को एक्सेप्ट करना, यही मिसाल, ये स्टोरी जो अभी बिलडब्ल्यू ने बताई कि गलती करने के बाद में हमारा ईगो नेचुरली बोलता है कि नहीं हमारी गलती, हम नहीं सुधरेंगे, हमको ये गलती लगती ही नहीं है, ये हम जस्टिफाई करने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये ट्रेडिशन का सही जो रस है वो रस हमारे तक पहुंचेगा, तो हमें समझ में आएगा कि हम प्रोबेबली 30 नहीं 40 साल से गलती कर रहे हैं, लेकिन आज का जो नया दिन है, आज हम इसको बदली करेंगे, तो एक ना एक दिन ये बदलाव आएगा। ये रही बात तुम्हारे पहले डर की कि कोई ग्रुप्स ट्रेडिशन का पालन नहीं करते हैं, या अंतर समूह का ऑफिस दो भाइयों के बिजनेस की जगह पर है, और तो अंतर समूह के पास में अगर दूसरी जगह नहीं है और कोई भाइयों ने उनको कम दाम में या बिना मूल्य अगर जगह दी हुई है, तो मैं पूछता हूं कि बिल्कुल ही अंतर समूह को जगह नहीं होने से दो भाइयों के ऊपर वाले माले पर जगह मिलना, इजंट दैट बेटर? और अगर वो है फिर भी वो जगह इस्तेमाल करते हुए क्या हम लोग अपना सेपरेट अस्तित्व बना नहीं सकते? तो हम सभी लोग किसी न किसी स्कूल के रूम में जाके मीटिंग करते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम वो स्कूल के साथ में संलग्न हो गए। हम वहां पर रहते हुए भी अपना अस्तित्व अलग बनाते हैं ना। हमारा जीएसओ का ऑफिस शेर पंजाब होटल के ऊपर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम शेर पंजाब होटल से संलग्न हो गए। तो जगह से ग्रुप भी नहीं जाना जाता, तो जीएसओ कहां से जाना जाएगा और ये एज ए होल कहां से जाना जाएगा? तो इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं दूंगा कि वो जगह कहाँ है, और वो जगह जहां है वो वहां है, क्योंकि आपका 7वां ट्रेडिशन जो है उसमें से जितना पैसा आता है उसमें से जो संभव है वो इतना ही संभव है, इस हेतु है, तो उसको ज्यादा मन में लेने का विचार नहीं है। और तीसरी बात, लेट अस टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर खुल रहे, चलो मैं बोलता हूं कि आपके अंतर समूह को बने हुए 25 साल हो गए या 20 साल हो गए, जो भी है। अब अंतर समूह ने जो भी सेवा की और आपके जो 18-20 लोग है ग्रुप है, उन्होंने जो भी सेवा की, उसके वजह से आज आपके पास गुजरात में 500,000 मेंबर सोबर है। लेकिन वो भी सभी एए के मीटिंग में आते हैं ऐसा नहीं है। वहां पर रिहैब सेंटर्स जो है वो अभी नेचुरली सभी गुजराती लोगों के खून में ही बिजनेस होता है, तो उन्होंने ये बिजनेस किया और कई सारे लोगों को उन्होंने मध्य मुक्तता दे दी। अब लेट अस से कि गुजरात में 500 रिहैब सेंटर्स है और हर साल उनके 100 पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं, तो 50,000 पेशेंट्स उनके डिस्चार्ज हो रहे हैं हर साल। तो वो 50,000 जो डिस्चार्ज हो रहे वो एए में क्यों नहीं आ रहे? वो क्या रिहैब सेंटर तो 3 महीने रख लेगा, 6 महीने रख लेगा, साल भर रख लेगा, उसके बाद की बची हुई जिंदगी भर वो तो फॉलोअप के लिए या अपने आप को सोबर रखने के लिए या अपने अंदर प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, स्टेप्स का पालन करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए एए में तो आना ही है उनको, नहीं तो वो सोबर नहीं रहने वाले। तो हमें अगर हम लोग ये बोलेंगे कि सभी बीमार लोग हॉस्पिटल में जाके ठीक होते हैं, तो फिर समाज में बाकी दूसरे कोई एनजीओ की जरूरत ही नहीं है, एनजीओ ये हॉस्पिटलों की पूरा खा जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। रिहैब सेंटर्स की ट्रीटमेंट ये लिमिटेड पीरियड के लिए होती है और उनका काम भी लिमिटेड होता है। उसके बाद में जिंदगी भर फॉलो करने का जो प्रोग्राम है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को करना है, और ये रिहैब सेंटर्स वाले भी जानते हैं। इसके लिए वहां से बाहर भेजते समय वो बता के ही भेजते कि आपको रिहैब सेंटर्स की मीटिंग अटेंड करनी है। आज अमेरिका में इतने सारे रिहैब सेंटर्स है, इसके बावजूद दुनिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स अमेरिका में ही है। तो अगर 90 साल में अमेरिका में इतने जो लाखों 1 लाख से ऊपर ग्रुप्स और 20 लाख के आसपास की सदस्यता, ये
हजारों रिहैब सेंटर्स होने के बावजूद अगर हो सकती है तो भारत में भी होगी। हमारे को किसी भी डर से प्रेरित होकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ अपना काम करने का है। और हम कोई समाज सुधारक थोड़ी है। हम तो सिर्फ अपने आप को शराब से दूर रखने के लिए ए में जाते हैं और अपने आप को रखने के लिए दूसरे के साथ काम करना होता है। इसके लिए हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अगर कल जाके ईश्वर ने चाहा कि रिहाब या जो कमर्शियल जो है वही सरवाइव होगा और तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं सरवाइव होगा तो वैसा ही सही। लेकिन अनुभव यह है कि कमर्शियलाइजेशन कितना भी हो, अंतिम स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो हर एक को अपने आप ही करनी है और उसके लिए उसको प्रोग्राम अपने आप ही करना है। बाहर से एडमिनिस्टर किया हुआ, एक्सटर्नली दिया हुआ जो कार्यक्रम है वो कुछ समय तक ही चल सकता है, लेकिन जो पर्सनालिटी, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज है और आध्यात्मिक जो प्रगति है वो अपने आप से ही होनी है और वो समूह की सहायता से ही होनी है और स्पॉन्सर की मदद से ही होनी है। मुझे तो बिल्कुल चिंता नहीं लगती। मुझे तो उल्टा ऐसे लगता है कि ये जो हजारों लाखों रिहैब सेंटर्स खुल रहे हैं ये हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मेन डिफिकल्टी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, हम किसी को डिटॉक्स नहीं करवा सकते। तो ये जो कमर्शियल सेंटर्स है ये डिटॉक्स करा के हमको रेडीमेड मेंबर दे रहे हैं जिंदगी भर के लिए। ले भाई ले, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लो। ये हमारी इनएबिलिटी है कि हम आने वाले सभासदों को अच्छा कार्यक्रम नहीं दे सके, स्टेप वर्क नहीं दे सके, स्पॉन्सरशिप नहीं दे सके, लिटरेचर से पहचान नहीं करा के दे सके। तो इधर आने के बावजूद भी हम उनको सोबर रहने में मदद नहीं कर सकते। ये हमारा फेल्योर है दोस्त। इसके लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने का कोई मतलब नहीं। जी, तो समय का ध्यान रखते हुए हम आज की इस सभा को सेरेनिटी प्रेयर से समाप्त करेंगे वीक फॉर्म में। और उसके बावजूद अगर किसी का कोई सवाल या कोई अनुभव है तो क्या हम हमारे सेरेनिटी के प्रेयर के बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सेरेनिटी प्रेयर में मेरा साथ दें। God grant us the serenity to accept the things we cannot change. Courage to change the things we can. And wisdom to know the difference. Will be done.